Hello and welcome everyone to another video from the ICSE English series for classes 6, 7, 8। मैं हूं आदेश, आपका इंग्लिश गाइड एंड मेंटोर, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब्स को। सो वर्ब और उनके टाइप्स को आज हम डील करेंगे एंड होप आप सभी रेडी हो गए आज के इस लेक्चर के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सेशन की और अपने डिस्कशन की ऑन द टॉपिक वर्ब्स। वेल, टू बिगिन विद, इफ आई वर टू आस्क यू व्हाट आर वर्ब्स, व्हाट वुड यू से? I know, all of you will scream in unison. Verbs are action words or doing words, right? यही कहते थे ना बचपन से हम। Of course, I know. After all, you have studied verbs like this only. मतलब आपने बचपन में ही हमेशा verbs को action words या doing words के फॉर्म में ही समझा है, right? Well, it is good to know verbs as, action words, to know them as a cornerstone about, what actually verbs are. But let me tell you, verbs are not just action words or doing words. Verbs are way more than or way beyond than what we call as action words. Fine? So, इसीलिए now it is highly imperative for us to understand what actually verbs are. And इसीलिए इस सेशन में हम beginning से बिल्कुल बेसिक से समझेंगे verbs क्या होते हैं। Well, of course, ये जो ICSE English series है, this is actually a foundation course, right? ये foundation ले करने वाला है आप सभी को to excel well in any sort of English exams that you appear in. Clear? And that is why it becomes very important for me to हम starting से begin करें सारी चीजें, ठीक है? And that is why we begin our discussion right from the scratch. What verb means, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले जानो verb, ये जो word है ना itself, this comes from a Latin word. इस word का origin भी जान लो. So this comes from a Latin word, and that Latin word from which it is derived is verbum. ये जो word verbum है, जिससे ये word verb derive हुआ है, it means a word. Okay, of course you would say, of course verb एक word ही तो होगा sir. What is the difference here? Or how does it make a difference, right? Of course, I know. See, remember, of course, क्योंकि verb एक part of speech है, that means ये English या language में use होने वाले words में से एक word होगा, right? इसका भी कोई role होगा, right? हमने पढ़ा हुआ है parts of speech वाले chapter में, we discussed as an introductory slide कि भाई क्या होते थे verbs, right? Fine. But इसको अब हम detail में समझेंगे. Well, if I say verb in its literal sense comes from the word verbum, that means word, I would mean ये एक बहुत important word है किसी sentence का. Remember this thing very well. किसी भी sentence का सबसे important word अगर कोई है, that has to be a verb. Okay? So it is the most important word in a sentence. You got my point? Because एक verb के बिना no sentence could be completed. Remember this thing. किसी भी verb के बिना कोई sentence कभी complete नहीं है. ठीक है? In fact, you remember I taught you imperative sentences के example के थ्रू मैंने बताया था आपको कि एक single word का sentence भी हो सकता है, right? Those are going to be imperative sentences and they consist of just a verb. उसमें आपको noun, subject वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, right? But a verb has to be there. If I say stop, I am giving you a command. It is a one word, stop, which actually means a verb. It is a verb. Stop is a verb. And it is giving us a complete meaning. And of course, imperative sentence hai, the subject is always implied, and that is you. I mean, you stop. Or if I say stand, if I say sit, okay, all of these words, if I say run, all of these words are actually verbs itself, and all of them can make a complete sense. That means verb इसीलिए बहुत important है because it itself can form a sentence alone. Okay, fine. And remember, अब भाई basically verb कर क्या रहा है? I told you verbs are not just action words, right? इसीलिए हम एक बहुत important तरीके से समझते हैं verbs क्या क्या कर सकता है then. So verb basically क्या कर रहा है? किसी sentence में verb हमें बताता है, tell करता है, assert करता है something about a person or thing. तो जो भी person या thing, यानी basically हम बात कर रहे हैं noun की. नाउन से रिलेटेड कोई भी बात बताने का काम वर्ब करता है, राइट? अब वो
noun could be the subject of the sentence, could be an object of the sentence also, but anyway the verb will tell us something जो उस noun या उस उस person या उस thing के साथ हो रहा है या वो कर रहा है एक sentence में। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि verb भाई हमें क्या क्या बता सकता है person या thing के बारे में जब वो एक sentence में आता है। Let us see। सबसे पहले verb में tell us what a person or thing does, मतलब जो person और thing है जिसके बारे में जो noun है हमारा sentence में वो क्या कर रहा है या क्या करता है। जैसे अभिनव plays the guitar। See, अभिनव जो मेरा noun है he plays the guitar। So अभिनव plays the guitar में देखो ये जो word plays है ये एक verb है। It is telling us कि अभिनव गिटार के साथ क्या करता है, उसको बजाता है। So what a person does और थिंग डज वो आपको बता सकता है। सेकेंडली व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, तो भाई कोई पर्सन या थिंग के पर्सन या थिंग के साथ क्या हो रहा है वो भी हमें एक वर्ब बताता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल द विंडो इज ब्रोकन। सो इफ आई से द विंडो इज ब्रोकन, तो देखो विंडो जो हमारा यहाँ पर नाउन है उसके साथ क्या हुआ है, इट हैज बीन ब्रोकन। सो द विंडो इज ब्रोकन उसका स्टेट बता रहा है, विंडो इज ब्रोकन। एक्शन देखो अगेन यहाँ पर इज ब्रोकन जो है ये मेरा एक वर्ब है। एंड यू विल बी सरप्राइज कि यहाँ पर आपको एक से ज्यादा वर्ड्स दिख रहे हैं वर्ब में। दैट मीन्स अ वर्ब कैन बी कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन वर्ड, फाइन। बट याद रखना हमेशा मेन वर्ब जो होगा वो एक ही होगा और उसको हेल्प करने के लिए टू फॉर्म द टेंस, मूड या वॉइस आपको एक हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगा। तो ब्रोकन यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट, जो हमें बता रहा है टेंस फॉर्म करने में। क्लियर, फाइन। अभी हम सब पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। देन थर्डली हमें वर्ब बता सकता है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। तो एक पर्सन का स्टेट बताने में भी हमें या पर्सन या थिंग का स्टेट बताने का काम भी वर्ब कर सकता है। जैसे भाई से कपिल इज अ टॉल मैन, राइट। सी, सो कपिल इज लेट्स से अ टॉल मैन, तो कपिल क्या है उसका जवाब देगा हमें अगेन एक वर्ब। सो इज जो होगा ये हमें बता रहा है कि जो हमारा पर्सन या थिंग है वो क्या है, ठीक है। सो यहां पर ये हमको क्या बता सकता है, द स्टेट ऑफ द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर। एंड लास्टली व्हाट अ पर्सन हैज, तो पर्सन या थिंग के पास क्या है यानी कि पोजेशन बताने का काम भी वर्ब कर सकता है इन अ सेंटेंस। सो इफ आई से ललिता हैज वेरी लॉन्ग हेयर, सी ललिता हैज वेरी लॉन्ग हेयर, सो इन दैट केस बता रहा है कि ललिता के पास लंबे बाल हैं, राइट। तो इसका मतलब पोजेशन शो करने का काम भी एक वर्ब कर सकता है। तो हैव यहां पर क्या हो गया हमारा, अगेन एक वर्ब है। तो वर्ब क्या क्या बता सकता है हमें एक सेंटेंस के बारे में या फिर एक पर्सन या थिंग के बारे में, कि वो क्या करता है या उसके साथ क्या हुआ या फिर वो क्या है या फिर उसके पास क्या है, ठीक है, खुद क्या है और उसके पास क्या है ये भी बता सकता है। यू गॉट माई पॉइंट, वेरी वेल। अब लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, राइट, इफ यू रिमेंबर। सी, ऑफन आपको वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे देखो द गर्ल्स वर सिंगिंग, सी द गर्ल्स वर सिंगिंग, इसमें सिंगिंग जो है ऑब्वियसली यहाँ एक्शन दिखा रहा है, दिस इज एक्चुअली द वर्ब, राइट। बट सी इस वर्ब के पहले देयर इज ऑल्सो वन वर्ड टू हेल्प द मेन वर्ब। दैट मीन्स यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब मिलके हमें वर्ब बना रहे हैं, एक प्रॉपर पूरा वर्ब बना रहे हैं। तो ये जो वर्ब होगा ये हमें सेंटेंस का टेंस भी बता रहा है कि ये कब हुआ होगा, ठीक है। ओके, आई हैव लर्न्ड माई लेसन, सी ओवर हियर ऑल्सो लर्न जो है मेरा मेन वर्ब है बट उसको हेल्प करने के लिए हैव लगा हुआ है। दैट मीन्स यहां पर ये जो टोटल वर्ब बन रहा है ना पूरा वर्ब हैव लर्न्ड, it is composed of the main verb along with a helping verb, right? So I have learnt my lesson, says this boy, let's say. Okay, and thirdly the watch has been found, see, तो यहाँ पर found जो है is the main verb, right? But see उसको help करने के लिए these two words has been is also used. All of these words जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना जो हेल्प कर रहे हैं मेन वर्ड को, those are called the helping verbs. Okay, इनका काम होता है to help the main verb form the tense, the mood, right, the voice of the sentence. Clear? So I hope the basic introduction about what verbs are and verbs के क्या क्या features हैं, what does a verb basically tell us in a sentence.
So बच्चों, now it is high time to discuss about the classification of verbs. तो एक broad classification से समझते हैं कि verbs को हम कैसे classify कर सकते हैं, so that हमारे lecture का flow easy बना रहे. See, सबसे पहले हम verbs को 3 broad categories में divide करने वाले हैं. सबसे पहले आते हैं हमारे main verbs और उनको help करने वाले verbs जिन्हें हम auxiliary verbs या helping verbs भी कहते हैं. Remember, auxiliary verbs is another term for the helping verbs. Now, auxiliary की verb के बाद हमारे पास finally आते हैं the non-finite verbs. I'll tell you what these are. इनको basically हम एक separate lecture में cover करेंगे. Okay? Fine. सबसे पहले शुरुआत करते हैं what are the main verbs. Main verbs वो words होते हैं, वो principal words होते हैं जो हमें किसी भी सेंटेंस में हो रहे एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है. तो बेसिकली इनको हम इसी वजह से 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सो मेन वर्ब्स हो सकते हैं ऐसे वर्ड्स जो कुछ एक्शन डिनोट कर रहे हैं या फिर स्टेट बता रहे हैं, इसीलिए हम इनको एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स या फिर स्टेटिव वर्ब्स में डिवाइड कर सकते हैं. राइट? ओके. एक्शन वर्ब जो होते हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन ये जो एक्शन है उसको कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, इनको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 ब्रॉड कैटेगरीज में. सो एक्शन वर्ब्स जहां पर एक्शन हो रहा है उसमें एक्शन कंप्लीट करने के लिए इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड तो उनको हम बुलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. वहीं पर अगर किसी एक्शन वर्ब को अपने एक्शन कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ऐसे केस में ऐसे वर्ब्स को हम बुलाएंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स. तो रिमेंबर, एक्शन वर्ब्स भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं. Ones which require an object to complete the sense, transitive. One who do not require or which do not require the object to complete the sense are called intransitive. इतना समझ में आ गया? गुड, वेरी वेल. नाउ ये तो बात थी मेन वर्ब्स की, एक्शन वर्ब्स या फिर स्टेट वर्ब्स के. ठीक है, फाइन. अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की. तो देखो, ऑक्सिलरी वर्ब्स याद है मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अब ये भी 2 टाइप की होती हैं. एक होती है भाई प्राइमरी ऑक्सिलरीज, राइट, जो मेन हमारी होती हैं. कौन कौन सी? इनकी 3 टाइप्स होते हैं. याद होगा आप सभी को, इफ एट ऑल यू रिमेंबर, इनके 3 टाइप्स कौन कौन से होंगे हमारे पास? एक तो बी होता है, राइट, दूसरा होता है हैव और तीसरा होता है डू. इनके भी फर्दर फॉर्म्स होते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे. सो प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 टाइप के होते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स वो सभी आती हैं यहाँ पर. वहीं पर आते हैं मॉडल्स. मॉडल्स जो हैं कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं जो अपना फॉर्म्स चेंज नहीं करते हैं, राइट, बट ये भी हेल्प करते हैं हमारे मेन वर्ब को. तो रिमेंबर, ऑक्सिलरी वर्ब्स का मेन फंक्शन क्या है? टू हेल्प दी मेन वर्ब, राइट. अब वो अपनी प्राइमरी ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करके कर सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का. अब डिफरेंट मॉडल कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने वर्ड सुने होंगे, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, राइट, ought to, need, dare, all of these, राइट. ऑल ऑफ दीज वर्ड जो हैं वो यहाँ पर मॉडल्स में आते हैं. ये अगेन ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा ये भी एक सेपरेट चैप्टर के फॉर्म में हम इसको स्टडी करेंगे. यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे. हमारा मेन आइडिया जो है आज के लेक्चर का वो होगा इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने का, पर यहाँ पर हम मॉडल्स को सिर्फ टच करेंगे, राइट. इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, राइट. फाइन. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. आगे देखो, अब ये आता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का. भाई ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्ब्स हैं विच एक्चुअली इफ आई वुड से, ये मैं तो इनको सूडो वर्ब्स कहता हूं, राइट. आई कॉल देम इंपोस्टर सूडो वर्ब्स, यानी कि दिखते ये वर्ब्स जैसे हैं बट ये वर्ब जैसा फंक्शन नहीं करते हैं एक सेंटेंस में. क्लियर? सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग या फिर नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं. दे कैन नेवर एक्ट एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. दे नेवर एक्ट एज अ मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर इनके फर्दर 3 टाइप्स आपको मिलेंगे. सो एक आपको मिलते हैं द इन्फिनेटिव्स, दूसरे आपको मिलते हैं द जेरेंड्स एंड तीसरे मिलते हैं द पार्टिसिपल्स. अब ये जो इन्फिनेटिव्स हैं, इन्फिनेटिव्स बेसिकली कहलाता है, इसमें देखो क्या होता है. इन्फिनेटिव्स कैसे बनते हैं? आप टू वर्ड के आगे वर्ब का मेन फॉर्म लगा दो, जो मेन बेस फॉर्म होता है ना. जैसे मैंने बोला टू रन, टू ईट, ऑल ऑफ दीज वर्ड जो टू के आगे वर्ब के मेन यानी कि बेस फॉर्म से मिलकर बन रहे हैं वो फॉर्म करेंगे इन्फिनेटिव. एंड रिमेंबर, यहां पर जो इन्फिनेटिव हैं दे डू नॉट एक्ट लाइक वर्ब्स, दे एक्ट लाइक नाउन्स. फाइन. सिमिलरली आपको जेरेंड्स मिलेंगे. जेरेंड्स मतलब क्या होता है? अगर आप अपने वर्ब के आगे आईएनजी फॉर्म लगा दो, राइट. वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है अगर वो एक सेंटेंस में, रिमेंबर, अगर वो एक सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वो बन जाता है जेरेंड.
इसको कैसे पहचानेंगे, याद रखना हमेशा कभी भी जेरेंड से पहले कोई ऑक्सिलरी नहीं आती है। मतलब आपको जैसे बी, हैव या डू के डिफरेंट फॉर्म्स है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, ये बहुत सारे हैं, उनके अगर इन वर्ड्स के पहले ना आए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्विमिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, सी तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज में क्या स्विमिंग से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर्ड जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, राइट। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि स्विमिंग जो है, जो आईएनजी फॉर्म है वर्ड स्विम का, जो कि एक्चुअली एक वर्ब दिखता है, बट यहां पर वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। इस केस में स्विमिंग जो है वो वर्ब नहीं होगा, इट वुड बी अ जेरेंड, राइट। तो जेरेंड मीन्स बेसिकली वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो कि एक्ट करता है लाइक द नाउन। सो ये दोनों जो फॉर्म्स होते हैं दे एक्ट एज nouns in a sentence, right? इसीलिए इनको हमने टोटली अलग कैटेगरी में रखा है। सिमिलरली तीसरे आते हैं पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स क्या है, देखो पार्टिसिपल्स भी आपको एक पूरा अलग कैटेगरी का नॉन फाइनाइट वर्ब्स मिलेंगे जो कि एक्ट करते हैं एज एडजेक्टिव्स। सो दे बेसिकली एक्ट एज एडजेक्टिव्स। इनके भी आपको फर्दर 3 फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे अगर मैं बोलूं इसमें क्या आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जैसे इफ आई से ईटिंग, राइट, इसमें आईएनजी फॉर्म ऐड होता है। फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल, तो वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में या तो ईडी लगेगा या फिर ईएन लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट में अगर मैं ईटिंग का पास्ट पार्टिसिपल बनाऊं तो ईटेड तो होता नहीं है ना, ईटन हो जाएगा, राइट। तो पास्ट पार्टिसिपल में या तो सफिक्स के तौर पे ईडी लगता है या फिर ईएन लगता है, जैसे यहां पर en लगा, क्लियर। एंड थर्डली वी हैव इज परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो बनता है कैसे, आपको बस हैविंग वर्ड के आगे पास्ट पार्टिसिपल लगा देना है। तो आपको क्या करना है, वर्ड हैविंग लिख के उसके आगे क्या लगा देना है, पास्ट पार्टिसिपल, तो इसको बन जाएगा हैविंग ईटन, ठीक है। तो ये वाली बातें समझ में आ रही है आप सभी को। तो ये बन गए हमारे डिफरेंट पार्टिसिपल्स। सो इनके ऊपर तो हम एक पूरा अलग से लेक्चर लेकर आएंगे और उनको डिस्कस करेंगे, बट अब हम अपना डिस्कशन जो है वो स्ट्रीमलाइन करेंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब्स में एक्शन वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स की भी फर्दर टाइप्स को, एंड आज हम ऑक्सिलरी वर्ब्स में प्राइमरी एंड मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। मॉडल्स को अगेन हम एक सेपरेट लेक्चर्स के फॉर्म में लाएंगे, बट आज हम सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे टू द मॉडल्स। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ब्स व्हिच आर कॉल्ड द मेन वर्ब्स नाउ। तो बच्चों लेट्स नाउ टॉक अबाउट द मेन वर्ब्स। नाउ टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब्स वो वर्ब्स हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स हैं एक सेंटेंस के, जो हमें बताते हैं कि सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है, या फिर जो पर्सन और थिंग उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वो किस स्टेट में है, राइट। तो दे एक्सप्रेस एक्शन और द स्टेट of the person or a thing being spoken about in the sentence. Clear? Now, so ये तो बात होगी मेन वर्ब्स क्या हैं। Now, इनको भी याद है, मैंने बताया था बेस्ड ऑन एक्शन और इनएक्शन हम इसको फर्दर डिवाइड करते थे 2 कैटेगरीज में। अगर मेन वर्ब एक्शन बता रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, मेंटल एक्टिविटी को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, दैट मीन्स वो एक एक्शन वर्ब की कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा। वहीं पर अगर एक मेन वर्ब सिर्फ स्टेट बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, या फिर किसी के होने का बस हमें एक्सप्रेस कर रहा है कि कोई चीज बस है, अगर कोई टॉल है तो वो टॉल है, या फिर वो पुअर है या वो रिच है, जैसे हमें कंडीशन बता रहा है, तो वो आते हैं स्टेट वर्ब्स में या स्टेटिव वर्ब्स में, राइट। वहां पर सिर्फ होने का एहसास होता है, यहाँ पर प्रॉपर एक्टिविटी होती है, राइट, एक्शन वर्ब्स में। सो रिमेंबर एक्शन वर्ब बेसिकली शो करते हैं किसी भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी को, इस बात को याद रखना। फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, मेंटल एक्टिविटी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल एक्टिविटी का एग्जांपल देखो, ही रोट अ पोएम, सो उसने एक पोएम लिखा, राइट। तो लिखना क्या है भाई, ऑब्वियसली ये एक एक्टिविटी है, राइट। तो एक फिजिकल एक्टिविटी है, यू आर राइटिंग, राइट। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक फिजिकल पेन एंड पेपर चाहिए होगा टू राइट समथिंग। नेक्स्ट इज आई थिंक डीपली, सो मैं गहराई से सोचता हूं, आई थिंक डीपली। तो थिंकिंग इज ऑल्सो अ मेंटल एक्टिविटी where things get engaged, right? इसका मतलब क्या हो रहा है, thinking since it is a mental activity, ये भी एक action verb की कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल I calculate fast, तो कैलकुलेट करना भी क्या है, एक मेंटल एक्टिविटी तो है, ऑब्वियसली दैट वुड ऑल्सो बी
an action verb. So ये सारे words जो हैं they will all fall under the category of action verbs. and बहुत सारे बचपन से जितने भी आपने mostly action words सुने हैं ना, doing words जिन्हें आप कहते थे, जैसे run, right, भागना, या फिर catch, पकड़ना ना किसी चीज को, swim करना, right, तैरना, eat, play, या फिर read, all of these are showing some or the other physical or mental activity, and hence they all fall under the category of the action verbs. Fine. Now moving on to the state verbs. बड़ा सिंपल है. स्टेट वर्ब बताते हैं हमें कंडीशन को. दे टेल अस अबाउट द कंडीशन. सो कंडीशन बता रहे हैं, या फिर फीलिंग बताते हैं, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं. एंड रिमेंबर वन थिंग, अनलाइक द एक्शन वर्ब्स, जनरली आपको स्टेट वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं मिलेगा. मतलब उनके आगे ing जैसा वर्ड नहीं होगा जनरली. ओके, जैसे रन का रनिंग हो सकता है, कैच का कैचिंग हो सकता है, स्विम का स्विमिंग हो सकता है, राइट. ऑल ऑफ दीज में ing लग सकता था मेन जो हमारे एक्शन वर्ब्स थे. बट जो स्टेट वर्ब्स होते हैं दे आर यूजुअली नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस. रिमेंबर दिस थिंग. तो ing वाला जो कंडीशन होगा ना, वो जनरली नहीं मिलने वाला है. क्लियर. तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर हमें स्टेट बता रहा है किसी के होने का, तो बी के लिए जैसे फॉर्म्स होते थे ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स. क्लियर. नो, फॉर एग्जाम्पल आई नो वॉट यू आर थिंकिंग. सो आई नो जो है, अगेन मैं जानता हूं, इसमें कोई एक्टिविटी तो नहीं हुई ना. जानना सिर्फ एक स्टेट बता रहा है, कंडीशन बता रहा है. या फिर आई बिलीव यू आर ट्रस्टवर्दी. तो बिलीव जो मेरा मेरा विश्वास है, तो विश्वास होना कोई एक्टिविटी तो नहीं शो कर रहा है. It is just showing us the condition or a state, right? Similarly, love. I love, red roses. तो love में कोई activity तो नहीं हो रही है ना. I love red roses में कोई activity, तो physical activity, mental activity तो हो नहीं रही है, right? It is just telling us the feeling. Or word like hate, understand. All of these words are telling us something regarding the condition, या तो feeling, या फिर किसी के होने का एहसास. So all of these would fall under the category of the state verbs. For example, लेते हैं कुछ example. If I say he is a tall man. तो इफ ही इज अ टॉल मैन में देखो क्या कर रहा है, इज जो है वो हमें सिर्फ उसके टॉल होने का एहसास बता रहा है. दैट मीन्स इज यहां पर एक स्टेट वर्ब है, इसमें कोई एक्शन तो नहीं है ना, वो है जैसा है वैसा है, तो उसमें कोई फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी तो नहीं हुई ना. इट मीन्स इट इज अ स्टेट वर्ब. सिमिलरली दे आर स्मार्ट. देखो ये जो वर्ड आर है, ये भी बी का दूसरा फॉर्म है, राइट. तो बी का ये दूसरा फॉर्म है जो प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. तो उस केस में देखो आर क्या कर रहा है, अगेन होने का एहसास बता रहा है कि वो स्मार्ट हैं. तो इसका मतलब अगेन यहां पर ये भी एक स्टेटिव वर्ब है. आई नो द आंसर. अब आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है, मालूम है. तो पता होना जो है, क्या इसमें कोई फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी हो रही है? नहीं, मुझे पता है. इट इज टेलिंग अस द स्टेट. ओके, दैट मीन्स व्हाट, अगेन ये जो वर्ड नो है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेट वर्ब. Lastly, she loves music or he hates music, for example. All of these words में it is telling us a feeling. अब feeling जो है वो कोई physical या mental activity तो नहीं है ना. In that case, obviously वो भी एक state verb में आएगा and not in the action verbs category. So I hope the difference between the action and the state verbs is clear. अब देखो हम चलते हैं action verbs के further classification पे. याद है मैंने बोला था action verbs जिसमें एक्शन हो रहा है, अगर उसको कंप्लीट करने के लिए, उस एक्शन यानी कि उसको अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए एक्शन को ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करना होगा, या फिर अगर उसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बुलाते थे. और अगर किसी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऐसे वाले एक्शन वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव बुलाते थे. तो नेक्स्ट वील बी टेकिंग अप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्शन वर्ब्स इनटू ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. तो चलो बच्चों, अब हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बेसिक डिफरेंस को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. देखो बच्चों, यहां पर आपको दो सेंटेंसेस दे रखे हैं. द बॉय किक्स द फुटबॉल एंड द बॉय लाफ्स लाउडली. पूरा अटेंशन यहां पर फोकस करके समझने की कोशिश करना, राइट. पहले तो एक वर्ड का मतलब समझो, क्योंकि देखो नाम में ही हमको वर्ड मिल रहा है ट्रांजिट. सी, ये जो वर्ड ट्रांजिट आ रहा है, बोथ वर्ड्स ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में, ट्रांजिट शब्द का मतलब होता है पासिंग ओवर. यानी कि कोई चीज पास ओवर होकर दूसरे के पास चली जा रही है. यहां पर एक्चुअली पासिंग ओवर होगा एक्शन का, जो वर्ब करने वाला है, राइट. याद रखना है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा एक्शन वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्शन वर्ब्स के लिए. तो यहां पर देखो, द बॉय किक्स द फुटबॉल में किक्स क्या है मेरा, दिस इज द वर्ब, राइट.
ये एक एक्शन वर्ड है, एक एक्शन वर्ब है रादर आई वुड से। इस एक्शन को कर कौन रहा है? द डूअर इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। आई मीन द बॉय ओवर हियर क्या बन जाता है मेरा? डूअर है इस एक्शन का। तो मैं इसको सिंपली क्या करूंगा? डूअर लिख देता हूं, ठीक है। सो एक्शन किसने किया? बॉय ने, राइट। उस एक्शन का रिजल्ट आया किसके ऊपर? बॉय ने एक्शन क्या किया था? किक किया था, राइट। बट वो किक लगी किसको? फुटबॉल को। इसका मतलब एक्शन करा किसी ने बट उसका रिजल्ट किसी और के ऊपर आया। यू सी, इन दिस केस जो फुटबॉल है वो बेसिकली क्या कर रहा है? उस एक्शन को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। सो ही बिकम्स द, आई मीन द फुटबॉल बिकम्स द रिसीवर, दैट मीन्स इट बिकम्स द रिसीवर ओवर हियर। डूअर से एक्शन किसके पास जा रहा है? पास ओवर होके रिसीवर के पास। इस केस में याद रखना, रिसीवर को हम बुलाते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। तो जब भी किसी सेंटेंस में एक्शन डन बाय द डूअर इज पास्ड ओवर टू द रिसीवर और टू द ऑब्जेक्ट, ऐसे वाले केस में इस्तेमाल होने वाले एक्शन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बुलाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब बॉल को किक मारी, अगर इस सेंटेंस का मतलब देखें हम पूरे उसमें, राइट। तो देखो, किक मारी किसने? बॉय ने, राइट। बट उसका असर किस पे देखने को मिला? उसका असर देखने को मिला कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, विच इज द फुटबॉल। इसका मतलब एक्शन करने वाला कोई और था लेकिन उस एक्शन को लेने वाला कोई और निकला, फुटबॉल निकली। ऐसे केस में वो जो एक्शन होगा वो एक ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा। समझ में आया? वहीं पर अगर मैं आपको दूसरा सेंटेंस बोलूं, द बॉय लाफ्स लाउडली, ओवर हियर ट्राई टू सी, द बॉय लाफ्स लाउडली में सी बॉय ने एक्शन किया है लाफ। लाफ इज एन एक्शन, राइट। एक एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, देख लो आप इसको, ये वर्ब है हमारा, राइट। तो डूअर कौन है इस एक्शन का? द बॉय इटसेल्फ। अब मैंने बोला जो बॉय है वो लाफ कर रहा है लाउडली, बट वो एक्शन जो है वो किसी और ऑब्जेक्ट के पास गया क्या? जिसने एक्शन किया उसी के पास ही एक्शन आया। अगर वो जोर से हंसा, द बॉय लाफ्ड लाउडली, अगर वो लड़का जोर से हंसा तो वो एक्शन रिसीव भी उस बॉय ने ही किया। मतलब यहां पर एक्शन रिसीव कोई करने वाला दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्शन स्टार्ट भी हो रहा है किसके ऊपर से? सब्जेक्ट के ऊपर से, यानी कि डूअर के ऊपर से, और रिसीव भी डूअर ही कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट ही रिसीव कर रहा है। ऐसे सेंटेंसेस जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जिनमें एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है, पास ओवर नहीं हो रहा होता है टू एन ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स को, एक्शन वर्ब्स को हम बुलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इस केस में ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल हमारे सामने था, दिस फर्स्ट कैटेगरी, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल एंड दिस इज द सेकंड वन। फर्स्ट वाले केस में द एग्जांपल दैट वी सॉ वाज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड वाले केस में वी सॉ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। Why? Because सेकेंड वाले सेंटेंस में आपको कोई एक्शन रिसीव करने के लिए अलग से कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। You got it? So this is the intransitive verb. Intransitive verb basically हमेशा state of being बताएंगे आपको जनरल केसेस में, right? Okay. So I hope यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम एक एक करके ना ट्रांजिटिव और intransitive verb को स्टडी करते हैं। Now talking about the transitive verbs. ट्रांजिटिव वर्ब जैसा कि मैंने बता रखा है, ये वो वर्ब्स हैं जो टेक करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, मतलब जिनको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट देयर एक्शन। फाइन। नाउ ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ये भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कैसे पहचानेंगे इनको भी समझते हैं। सी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिलेट करते हैं सबसे पहले वर्ब के साथ। सो इनका रिलेशन सीधे वर्ब के साथ होता है, राइट। दूसरी चीज, ये हमेशा वर्ब के द्वारा हो रहे एक्शन से डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, रमेश आस्क्ड अ क्वेश्चन। तो रमेश आस्क्ड मेरा वर्ब है, क्या पूछा उसने? अ क्वेश्चन। रिमेंबर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट होना है, पहली चीज तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आंसर करता है एक क्वेश्चन को, विच इज व्हाट। अगर आपको पहचानना है कि एक ऑब्जेक्ट व्हाट का वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप सवाल पूछो व्हाट।
उसका जवाब आपको मिलना चाहिए। बट रिमेंबर, व्हाट का जवाब मिलने में बीच में कहीं पर कोई प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। अब मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, वर्ब के बाद अगर मैं पूछा हूं रमेश आस्क्ड व्हाट, सो अ क्वेश्चन, राइट, बीच में देखो कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है, राइट, इसका मतलब यहां पर अ क्वेश्चन जो होगा वो मेरा क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। सो इट ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, बट रिमेंबर बीच में देयर नीड्स नॉट टू बी अ प्रेपोजिशन, अदरवाइज वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। यू गॉट इट? ओके। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट करते हैं उस पर्सन को जो कि वर्ब के द्वारा किए गए एक्शन से या फिर बेनिफिट हो रहा है या फिर उसको रिसीव कर रहा है समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन जो कि वर्ब ने किया। जैसे याद रखो एक इंपॉर्टेंट बात कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का एक ट्रिक होता है टू आस्क द क्वेश्चन whom या फिर who, मतलब बेसिकली उस एक्शन से किसको फायदा हो रहा है, राइट। तो जैसे अगर मैं बोलूं रमेश आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो देखो रमेश आस्क्ड मी अ क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते थे, रमेश आस्क्ड, देखो पहला क्वेश्चन का जवाब है यहां पर पूछा जा रहा है रमेश आस्क्ड whom अ क्वेश्चन, मी, whom का जवाब दिया है मी ने, इसका मतलब मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अ क्वेश्चन में अ क्वेश्चन जो है रमेश आस्क्ड मी व्हाट का जवाब दे रहा है, देखो यहां पर क्वेश्चन, इसका मतलब ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो रिमेंबर दिस थिंग, मी और यहां पर क्वेश्चन दो आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, बट रिमेंबर अगर कहीं पर आपको दो ऑब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन है, जनरली आपको पहचानने में नहीं आ रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, तो ऐसे में याद रखना वर्ब के डायरेक्टली बाद हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद फाइनली आता है द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो वर्ब के जस्ट इमीडिएट बाद में अगर कोई वर्ड लिखा है इट कैन बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद फाइनली द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर तब भी नहीं आंसर समझ आए तो आस्क करो दीज टू क्वेश्चंस, व्हाट का जवाब जिस वर्ड से मिले वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा एक सेंटेंस में, और हुम का जवाब जिससे मिले वो बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप यहां तक क्लियर समझ में आ गया आपको। नाउ इट इज टाइम कि हम इसको प्रैक्टिस करें बच्चों, अदरवाइज प्रैक्टिस के बिना यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट कि क्या ट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और क्या इनडायरेक्ट वंस। सो अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड हाईलाइट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड स्टेट whether they are direct or indirect objects. तो सी बच्चों यहाँ पर ये लेट्स प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है, but I won't be doing all of them. I will do a few and the rest would be a homework for all of you. So I will do some, let's say I'll do the first one, I'll do the fourth one, fourth के बाद I'll do let's say 8th, let's example 11th and okay 10th also. इतने मैं कर रहा हूँ, बाकी आपको करने हैं। Fine. So first one says निशांत closed the window. क्या यहां पर वर्ब है? सबसे पहले बोला गया है टू अंडरलाइन द वर्ब। सो वर्ब क्या है हमारा इस केस में? एक्शन कौन सा है बच्चों? द वर्ब इज क्लोज्ड। अब इस क्लोज्ड का क्या कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको? निशांत क्लोज्ड व्हाट? द विंडो। तो विंडो हमारा क्या बन जाएगा यहां पर? ऑब्जेक्ट, राइट। अब बताओ मुझे ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्शन से अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो क्लोज है, निशांत ने क्लोज किया बट बंद क्या हुई? विंडो। तो इसका मतलब यहां पर जो एक्शन निशांत ने किया था, डूअर ने, वो किसके पास पहुंचा? विंडो के पास पहुंचा। इसका मतलब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो, क्योंकि ये आंसर कर रहा है रमेश क्लोज्ड व्हाट को, है ना। रमेश क्लोज्ड, सॉरी, निशांत क्लोज्ड हुम तो नहीं ना बोला, हुम का जवाब तो नहीं मिल रहा है ना, व्हाट का जवाब मिल रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दिस केस में रिमेंबर दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, द किटन प्लेड विथ द बॉल। नाउ लुक एट दिस वन, द किटन, द किटन मेरी डूअर है, प्लेड मेरा एक्शन है, दैट मींस प्लेड क्या है? हमारा वर्ब है। विद द बॉल, देखो द किटन प्लेड व्हाट का जवाब नहीं मिल रहा है, बट यहां पर देखो अगर मैं क्वेश्चन पूछता द किटन प्लेड विथ व्हाट, तब द बॉल का जवाब मिलता। बट देखो मैंने बोला आपको यहां पर द बॉल से पहले एक प्रेपोजिशन आ जा रहा है, इसका मतलब ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, राइट। द बॉल कैन नॉट बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। रिमेंबर, इसका मतलब यहां पर द किटन प्लेड में वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, ओके। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है बच्चों, विथ द बॉल, बिकॉज इट इज बिगिनिंग विथ अ प्रेपोजिशन,
इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो preposition से बिगिन कर रहा है, इसलिए इसको हम prepositional phrase बुलाएंगे. बट रिमेंबर यहाँ पर it is not having an object. So there is no object in this particular sentence. Clear? Now let's move on to the 8th one. The naughty boy broke the toy. So the naughty boy is the doer of the action. तो इस केस में ये हमारा doer है. It's not highlighted. Broke is my verb. तो ये verb है हमारा. अब broke what का जवाब देखो क्या मिल रहा है, the toy. बीच में कोई preposition था? नहीं था. इसका मतलब ये मेरा direct object ही है. What का जवाब मिल रहा है without a preposition. That means ये मेरा object भी है. और कौन सा object है ये? Direct. Clear? Ruth collects rare coins. Ruth क्या करता है? Doer है. Collect क्या करता है? Rare coins को. मतलब collection का काम कर रहा है Ruth, लेकिन collect हो क्या रहा है? Rare coins. So rare coins क्या बन जाएंगे मेरे? Object. Collect क्या है? Verb. और ये object कैसा है बच्चों? Obviously Ruth collects what? What का जवाब मिल रहा है ना? इसका मतलब ये direct object है. Raju gave me a ring. Now see, look at this one. राजू जो doer है एक्शन का, gave मेरा verb हो गया, right? Me a ring. See again यहाँ पर me भी आ रहा है और ring भी आ रहा है. Confused? यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से हैं? तो देखो वर्ब के इमीडिएट बाद आने वाला जो वर्ब होगा, I mean जो ऑब्जेक्ट होगा, दैट वुड बी इनडायरेक्ट. Why? Because it answers the question whom. Raju gave a ring to whom? Me, right? और क्या दिया राजू ने? What he gave me? A ring. इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है, but this object is direct object. So remember क्या करना है? Verb पहचानना है, verb के immediate बाद में देखना है आपको क्या what का जवाब मिल रहा है without a preposition या whom का जवाब मिल रहा है without a preposition. It can be objects. Objects direct है कि indirect है, उसको जवाब पहचानने के लिए आपको मैंने बता रखा है. What का जवाब हुआ तो direct और whom का जवाब हुआ तो indirect. So इस तरीके से आपको बाकी की एक्सरसाइज करनी है and that shall be your homework. And I would want all of you to answer all of these remaining questions in the comment section below and I'll personally check कितनों ने यहाँ पर सही जवाब दिए हैं. Now let's discuss the intransitive verbs. So as I told you, intransitive verbs उन एक्शन को डिनोट करते हैं जो कि बिगिन भी करते हैं और एंड भी करते हैं सब्जेक्ट के साथ ही, यानी कि डूअर के साथ ही. ओके, तो सब्जेक्ट याद रखना है आपको, इज द डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, मतलब जिसने एक्शन किया उसका रिजल्ट भी उसी के ऊपर आया है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, और याद रखना दे डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट. इंट्रांजिटिव वर्ब ही होते हैं इसीलिए बिकॉज उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है. सो दे एक्सप्रेस अ स्टेट और अ बीइंग. फॉर एग्जांपल द बेबी स्लीप्स. यहां पर द बेबी स्लीप्स में जो एक्शन है स्लीप का वो किसके ऊपर आ रहा है? सो कौन रहा है? बेबी, राइट? और एक्शन कर भी बेबी रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है? जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पर ही वापस आ रहा है. इसका मतलब इस केस में इट इज, यानी कि जो वर्ड स्लीप्स है ये एक इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ड है. ओके, देन उसके बाद अमीश इज अ राइटर. सो अमीश इज अ राइटर में अब अमीश के राइटर होने का बारे में पता चल रहा है. तो अमीश क्या है? राइटर. तो राइटर है कौन? अमीश ही तो है. इसका मतलब ये जो वर्ड राइटर है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है, रादर अमीश को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मतलब हमारे सब्जेक्ट को ही बता रहा है. इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उस वर्ड को कहते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन बताता है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज शीला सिंग्स वेल. तो शीला सिंग्स क्या गाती है? उसका कोई जवाब नहीं है ना, व्हाट का जवाब नहीं मिल रहा है ना. तो शीला सिंग्स वेल कैसा गाती है का जवाब मिल रहा है ना. हाउ शी सिंग्स, हाउ का जवाब मिल रहा है, व्हाट का जवाब नहीं मिल रहा है. मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर. इसका मतलब ये जो सिंग्स है ये भी क्या हुआ? ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. इज, स्लीप्स, जैसे ये जो वर्ड्स आपको देखे ना, इज, स्लीप्स या फिर सिंग्स, इन केसेस में इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर ये सब्जेक्ट को ही रेफर बैक कर रहे हैं. इन दैट केस ये एक्शन जो है वो जिन वर्ब्स की तरह हो रहे हैं उनको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे. क्लियर? Okay, so it is finally time now to practice once again, and this time we have to underline the verbs in the following sentences, identify whether the verb is transitive या फिर intransitive. So यहाँ पर भी again I'm not going to do all, I'll do a few for you and the rest you will do. So I'll do the first one, let's say the fifth one. Okay, first, fifth, then let me do the 7th, 9th and let's say 11th. ठीक है? Okay, look at the first one. We clean our room every day. Firstly हमें verb को underline करना है. So we clean our room में verb क्या हुआ?
क्लीन, सो दिस बिकम्स अ वर्ब। अब क्लीन क्या कर रहे हैं, उसका जवाब वी क्लीन व्हाट, आवर रूम। सो आवर रूम क्या बन जाएगा इस केस में, ऑब्जेक्ट, राइट। अगर एक सेंटेंस में वर्ब के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट, इस केस में कैन यू टेल मी ये कौन सा वाला टाइप ऑफ सेंटेंस होगा, यानी कि कौन सा वाला वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वाला, क्लीन। सो क्लीन यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है हमारा, क्लियर। सेकेंड वन देखो यहां पर फिफ्थ वाले को, द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द जोक। सो द चिल्ड्रन लाफ्ड में लाफ्ड मेरा वर्ब है, राइट। लाफ्ड व्हाट, व्हाट का जवाब नहीं मिल रहा है ना, एट द जोक पे लाफ्ड एट व्हाट आ रहा है, लेकिन देखो वर्ब के बाद बीच में एक प्रेपोजिशन आ गया है, इसका मतलब ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्लियर। द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द जोक बेसिकली एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब जो है वो बिना ऑब्जेक्ट पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये हमारा एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। सेवेंथ वाले को देखो, डू यू फाइंड द हाउस यू वर लुकिंग फॉर, सॉरी डिड यू फाइंड द हाउस यू वर लुकिंग फॉर। नाउ डिड यू फाइंड में देखो फाइंड क्या है, मेरा वर्ब है, और ये क्या हो, वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट है क्या, फाइंड व्हाट, डिड यू फाइंड व्हाट, द हाउस, दिस मींस दिस इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर। सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये जो वर्ब है वो कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्लियर। नेक्स्ट वन, नाइन्थ, माई सिस्टर एंड आई ऑलवेज डिसएग्री। तो वर्ब क्या हुआ मेरा इधर पे, डिसएग्री। क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्लियर। द बर्ड्स आर चर्पिंग, द बर्ड्स आर चर्पिंग में देखो चर्पिंग क्या है, मेरा वर्ब है, राइट। क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं। चर्पिंग का काम कौन कर रहा है, बर्ड्स, राइट। तो चर्प हो कौन रही है, ऑब्वियसली द बर्ड इटसेल्फ। तो जो एक्शन है वो बर्ड से ही स्टार्ट हुआ, बर्ड्स पे ही खत्म हो रहा है, इसलिए ये वर्ब भी इंट्रांजिटिव होगा, क्लियर। सो आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है, ये समझ में आ गया होगा। एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस शैल बी योर होमवर्क। सो इट इज हाई टाइम राइट नाउ, आइदर यू टेक द स्क्रीनशॉट और आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन। तो आप पॉज लेके वीडियो को क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कॉमेंट्स में भेज सकते हो अपने आंसर्स। तो बच्चों मेन वर्ब्स को पूरी तरह से डिस्कस करने के बाद अब बारी है टू मूव ऑन टू दी ऑक्सिलरीज, या फिर जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स भी बुलाते हैं। नाम से समझ में आ रहा है इनका मेन काम क्या है भाई, टू हेल्प द मेन वर्ब, राइट। तो मेन वर्ब को ये हेल्प करते हैं टू फॉर्म द टेंस, द मूड, द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, क्लियर। चलो सो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखो रोहन वॉज कॉलिंग हिज फ्रेंड, सो रोहन वॉज कॉलिंग हिज फ्रेंड, इसमें मेन वर्ब क्या है, कॉलिंग, जिसमें एक्शन हो रहा है ना, इसका मतलब मेरा मेन वर्ब इस केस में कॉलिंग है, बट उसको हेल्प कर रहा है ये जो वर्ड वॉज, वो बन गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइट। सो रिमेंबर वॉज यहां पर एक मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये एक हेल्पिंग वर्ब है। सिमिलरली राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल में अगेन यू फाइंड गोइंग जो है दिस इज द मेन वर्ब, राइट। और इस मेन वर्ब को कौन सपोर्ट कर रहा है, इज, ये बता रहा है कि कौन से टेंस में ये सेंटेंस है, यानी कि राम अभी स्कूल जा रहा है, उसकी उसकी टाइम जब वो एक्शन हो रहा है उसको बताने का काम कर रहा है ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इज। निशा हैज पैक्ड हर बैग, तो पैक्ड क्या है, अगेन मेरा मेन वर्ब है, और हैज उसको हेल्प कर रहा है टू फॉर्म द टेंस। इस केस में अगेन यहां पर भी ये जितने भी मैंने ब्लू में हाईलाइटेड वर्ड्स लिखे हैं, दे आर ऑल एक्टिंग एज दी हेल्पिंग वर्ब्स बिकॉज दे आर हेल्पिंग दी मेन वर्ब। अब मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब्स भी दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, द प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो कि 3 टाइप की होती थी, बी, डू और हैव, राइट। ये 3 होती थी और इनके डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिलते थे। वहीं पर दूसरी कैटेगरी जो स्पेशल टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं दी मॉडल्स, उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, आज भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बट पूरी तरह से नहीं, क्लियर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और उनके डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब मैंने मेंशन कर रखे हैं, दीज आर ऑल द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। 3 फॉर्म्स हैं उनके, बी, डू एंड हैव,
पहले बी की बात करते हैं, इनके प्रेजेंट और पास्ट टेंस समझेंगे। बी के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनमें प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं 3 टाइप्स, इज, एम और आर। इज एम का इस्तेमाल किया जाता है फॉर सिंगुलर नाउन्स, राइट, एंड खास करके जो एम है उसका इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ किया जाता है। आर का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल के लिए, राइट। एक्सेप्शन यहां पर क्या होगा, यू, राइट। यहां पर यू जो होगा, यू आर, वी डोंट से यू इज। यू अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी होगा ना तो उसके लिए हम आर लगाते हैं, क्लियर। तो इस केस में यहां पर प्लूरल के केस में, एक्सेप्शनल केस में यहां पर नीचे मेंशन कर देता हूं, रादर आप इस्तेमाल जो करेंगे, द एक्सेप्शन वुड बी दिस वन, एक्सेप्ट यू, ठीक है। और पास्ट टेंस में देखो, वॉज, वर में देखो, वॉज का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर के लिए और वर का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल के लिए। बट यहां पर अगेन आपको याद रखना है, यू आप वर लगाएंगे, यू के आगे यहां पे वर लगेगा, ओके। एंड कभी कभी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अगर मैं इमेजिन कर रहा हूं तो आई के आगे भी वर लगेगा। आई विश आई वर अ बिलियनियर, राइट। तो आई वर अ बिलियनियर, हमें यहां पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राइट। तो इस केस में भी हम आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट कुड बी दी एक्सेप्शन, राइट। बट यू के साथ आप वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई के साथ आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी रियल इंसिडेंट को बताने के लिए। यस्टरडे आई वॉज एट द स्कूल, तो उस केस में देखो वॉज का इस्तेमाल आई के साथ किया है। बट अगर कोई अनरियल इंसिडेंट है या फिर अनरियल आपकी इमेजिनेशन है, उस केस में आप आई के साथ वर का इस्तेमाल लगाते हो टू शो और एक्सप्रेस दैट इमोशन, दैट यू नो दैट यू वांट टू बी समथिंग, ओके। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं डू के आपको प्रेजेंट फॉर्म मिलेंगे डू एंड डस। डू का इस्तेमाल किया जाता है विथ प्लूरल ऑब्जेक्ट्स एंड आई। तो आई के साथ आप पहली चीज डू का इस्तेमाल करेंगे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ। बट डस का इस्तेमाल हमेशा किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर नाउन्स के साथ। डिड जो हमारा पास्ट टेंस है किसका, डू का, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। हैव को देखते हैं। हैव के प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स हैं हैज और हैव। हैज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए किया जाता है, राइट, और हैव का इस्तेमाल प्लूरल के लिए किया जाता है, एंड आई के लिए भी। आई हैव इट, आई डोंट से आई हैज इट, ओके। सिमिलरली यू के लिए भी, यू के साथ भी आप इस्तेमाल करते हैं, यू हैव इट, यू हैज इट नहीं होता है, राइट। इसको हम यहां पर आई और यू भी लगा लेते हैं, 1 सेकेंड, क्लियर। तो यहां पर प्लूरल आई एंड यू के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर हैड का इस्तेमाल आप सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज हाउ वी विल बी यूजिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स और द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच आर बी, डू एंड हैव। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स की ओर, व्हिच आर दी स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स कॉल्ड दी मॉडल्स। तो दीज आर स्पेशल वर्ब्स जो कि हमें डिफरेंट मीनिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए नजर आएंगे। जैसे ये बहुत सारी मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे परमिशन को, राइट। तो परमिशन देने के लिए जैसे आप ही बोलते होगे क्लासरूम में, मे आई गो टू द वॉशरूम और मे आई हैव सम वाटर, ऑल ऑफ दीज यू नो परमिशन लेने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, विच इज इटसेल्फ अगेन एक मॉडल, राइट। या पॉसिबिलिटी बताने के लिए आई कैन गो देयर, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं वहां जा सकता हूं। और इट मे रेन टुमारो, तो पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कल बारिश हो। पॉसिबिलिटी बताने के लिए देखो कैन और मे जैसे वर्ड का इस्तेमाल होना। एबिलिटी, अगेन कैन का इस्तेमाल, आई कैन डू दिस, मतलब मैं कर सकता हूं, एबिलिटी है मुझ में ये करने की। नेसेसिटी, यू शुड डू इट, इट इज नेसेसरी यू शुड डू इट, राइट। फिर सर्टेनिटी कि ये होगा ही होगा, या फिर ऑब्लिगेशन, यू मस्ट डू इट, मतलब यू हैव टू डू इट, यू आर बाउंड टू डू इट, इट इज कंपल्सरी। ऑब्लिगेशन बताने के लिए भी देखो आप मस्ट जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि अगेन एक मॉडल है। तो याद रखो इन सभी अलग अलग टाइप की आप कह सकते हो मीनिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं मॉडल्स। बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्पीकर के मूड को बताने का काम करते हैं मॉडल्स, इसलिए नाम है मॉडल्स, ठीक है, बिकॉज दे एक्सप्रेस द मूड। तो कॉमन मॉडल कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, देखो कैन का कुड हो जाता है, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, ought, ought to या फिर dare, all of these can come. And modals remember never change their form. इनका form change कभी नहीं होता है,
नीड नीडेड नहीं हो जाता है when I'm talking about them being used as modals itself, helping verb की तरह, okay? या फिर may जो है वो made या फिर maying नहीं हो सकता है, right? musting नहीं हो सकता है, musted नहीं हो सकता है. Remember, इनका form change नहीं होगा, they will remain the same. And one more important thing, modal के बाद इस्तेमाल होने वाला जो verb होगा वो हमेशा base form में इस्तेमाल होता है. I'll tell you with some examples now. Amit and Rohan can play. इसमें जो word can है, this is a modal. कैन यहां पर क्या बता रहा है? एबिलिटी को, राइट? मतलब अमित एंड रोहन के पास एबिलिटी है खेलने की, पोटेंशियल है खेलने का, राइट? देखो कैन के बाद जो वर्ब आ रहा है वो अपने बेस फॉर्म में आ रहा है, ना तो उसके आगे ईडी लगाए, ये तो प्लेड नहीं बना, ना ही ये प्लेइंग बना, राइट? इसमें वर्ब जो फॉलो कर रहा है एक मॉडल को, उसका कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होगा, इट विल बी यूज्ड इन द बेस फॉर्म इटसेल्फ. Remember this point very well. Similarly, देखो नीता should appear for the test. So देखो should का इस्तेमाल किस लिए होता है? To express suggestion या advice, है ना? Advice, suggestion देने का काम. इस वाले केस में भी देखो should के बाद इस्तेमाल होने वाला जो verb है मेरा appear, वो भी base form में इस्तेमाल हो रहा है. Okay? कहीं पर भी appeared या appearing जैसे word should के बाद नहीं आ सकते हैं. क्लियर? तो वर्ब का बेस फॉर्म ही लगता है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, वेडनेसडे मे बी अ हॉलीडे. तो इफ आई से वेडनेसडे मे बी अ हॉलीडे में मे जो है अगेन ये बता रहा है एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. नाउ मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है, उसके आगे देखो बी जो है, बी एक ऑलरेडी याद है आप सभी को, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो बेस फॉर्म है वर्ब का, राइट? तो बी इज द बेस फॉर्म, राइट? तो मे क्या बता रहा है यहां पर? Possibility. Clear? And the last one you see, you must return these books to the library. तो must देखो यहाँ पर again यहाँ पर obligation बता रहा है. Okay, so this is showing an obligation that you have to do it. So इसके बाद इस्तेमाल होने वाला जो verb है again see return, वो भी बेस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर भी ईडी या आईएनजी जैसे फॉर्म्स नहीं इस्तेमाल हुए. सो द रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडल्स खुद भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, मॉडल्स के बाद इस्तेमाल होने वाले जो वर्ब्स हैं उनका फॉर्म भी चेंज नहीं होता है, दे रिमेन इन देयर बेस फॉर्म. दैट्स द की. ओके, तो आई होप मॉडल से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे आज समझानी थी टू गिव यू एज अ कॉर्नरस्टोन अबाउट इट, आई होप आपको समझ आई होगी. इसके लिए हम एक अलग से चैप्टर लाने वाले हैं, डोंट वरी एट ऑल. तो चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स. तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिनके थ्रू आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीच से फॉर्म करते हो उनके वर्ब्स को. ओके, तो यहाँ पर बेसिक तरीका वही है जैसे हम लोग डिफरेंट एडजेक्टिव फॉर्म करते थे या फिर डिफरेंट टाइप के नाउन्स फॉर्म करते थे. इस केस में भी हमें यहाँ पर एडिशन ऑफ सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस ही वर्ब का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा. जैसे बाय एडिंग द प्रीफिक्स बी, अगर मैं लगा दूं कुछ वर्ड्स के पहले, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज फूल. फूल के आगे मैं अगर बी लगा दूं, इट बिकम्स बीफूल, इट बिकम्स द वर्ब बीफूल. फ्रेंड के पहले अगर मैं बी लगा दूं, बिकम्स बीफ्रेंड. ओके, दोस्ती करना, राइट? या फिर डैजल के पहले अगर मैं बी लगा दूं, बिकम्स बिडैजल. या फिर लिटिल से पहले अगर मैं बी लगा दूं, बिकम्स बी लिटिल. ओके ओके, देन उसके बाद बाय एडिंग द प्रीफिक्स एन, जैसे एबल से पहले एन लगा दूं, बिकम्स एनेबल. या फिर करेज से पहले एन लगा दूं, बिकम्स एनकरेज. लार्ज से पहले एन लगा दूं, बिकम्स एन लार्ज. सर्कल से पहले एन लगा दूं, बिकम्स एन सर्कल. इसी तरह से डियर बिकम्स एंडियर इन केस ऑफ द वर्ब. डेंजर का वर्ब फॉर्म एंडेंजर बन जाएगा, रिच का एनरिच बन जाएगा, क्लोज का एनक्लोज बन जाएगा. सी क्या किया है हमने, बस कुछ सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगाए हैं. फर्स्ट केसेस में हमने प्रीफिक्सेस की एग्जांपल देखे, दूसरे में हम देखते हैं सफिक्सेस में. जैसे मैंने अगर एक सफिक्स फाई का इस्तेमाल किया, जैसे ब्यूटी वर्ड था मेरे पास, मैंने उसके आगे फाई लगा दिया, ब्यूटीफाई कर दिया उसको, वाई को हटा के आई लगाया और एफ वाई लगा दिया, बिकम्स ब्यूटीफाई इज द वर्ब ओवर हियर. पीस को पैसिफाई, क्लियर का क्लैरिफाई, ग्लोरी का ग्लोरीफाई, हॉरर का हॉरिफाई, वेरी गुड. प्योर का प्योरीफाई, just justify, and solid का solidify. Now by adding suffixes like is या फिर ISE, आप कह सकते हो ice भी बोल सकते हैं इसको. जैसे apology में मैंने ice लगाया तो obviously y को हटाऊंगा, ISE लगा दूंगा तो apologize बन जाएगा, becomes a verb. Civil civilize, memory memorize, sympathy sympathize बन जाता है. और इस तरीके से डिफरेंट टाइप के आप वर्ब्स फॉर्म कर सकते हो इन 4 तरीकों से, सिंपली बाय एडिंग द प्रीफिक्सेस. आपने देख ही लिए तो कौन कौन से थे वो. सफिक्सेस भी आप लगा सकते हैं जैसे फाई और
यहाँ पर eyes. I hope ये आपको clear हो गए, and let's now practice them through an exercise. So बच्चों, next we have on screen is an exercise that says fill in the blanks with the verb form of the words given in the brackets. Okay, so यहाँ पर again I won't do everything. I will do a few. Let's see, I'll do the second one. I'll do, let's say, fourth one, sixth, and eighth one. The remaining shall be a homework. Let's see the second. Everyone was eager to dash the new student. Friend. अब friend से मुझे उसका verb बनाना है. What will I do? I will add the prefix be to it. It becomes befriend. So everyone wanted to be a friend with the new student. Maya should dash in the British poetry if she wants to teach in a college. Special. Special का मुझे verb form लगाना है, तो क्या करूंगा? उसके आगे eyes लगा दूंगा. Becomes specialize. Okay, so Maya should specialize in British poetry if she wants to teach in the college. Only the police could dash this mob. Peace. Peace के लिए याद रखना है आपको IFY वाला suffix लगाना था. It becomes pacify. Peace का pacify हो जाता है, मतलब शांति लाना. ठीक है? They will dash the dialogues of the play. Memory. So it becomes exactly, very well done. Memorize. Kudos to all of you जितनों ने मेरे साथ इसको सॉल्व किया. Now the remaining shall be the homework. इसको मेंशन कर देता हूं और आपको क्या करना है, रिमेनिंग क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजने हैं. तो बच्चों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा पहला लेक्चर ऑन द टॉपिक वर्ब्स. आई होप आज के सेशन में डिस्कस किए टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे. अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें आस्क अ डाउट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो एंड वी विल मेक श्योर टू आंसर ईच ऑफ योर क्वेरी विद इन 24 आवर्स. एंड अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज डू शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड अपने फीडबैक्स भी हम तक शेयर जरूर किया करो कमेंट सेक्शन में. एंड अंटिल वी मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ICSE English series for classes 6, 7, 8 at Learner Hub.